Welcome back to another heartfelt vlog. This video is from the Majlis we arranged at our home on the Shahadat of Bibi Sakina SA. In the beginning, you will see the men installing the white gazebo in our backyard to prepare for the Majlis. Later, my father can be seen offering prayers in front of the alam of Mula Ghazi Abbas, Ehsan. The night before, we had already decorated and set up everything, so by morning the house was ready for the blessed gathering. For this majlis, we set up a beautiful white gazebo in our backyard. We decorated it with majlis banners, which completely transformed the space. It truly looked and felt like an Imam Barga inside our home. The banners, the alam of Mula Ghazi Abbas, and the seating arrangements created a spiritual and sacred atmosphere. One of the most heart-touching moments was seeing my father and Shahrukh sitting together under the marquee, quietly listening to the nohas of Nadeem Sarwar. It was a peaceful and emotional scene, as if we were already sitting in an Imam Barga, even though it was in our own home. This setting made the majlis even more special and memorable, bringing the family and community together while keeping the remembrance of Karbala alive in a sacred environment. Before the majlis, me and my father went together to buy fresh flowers for the alam of Mula Ghazi Abbas, ASAS, and also some dry fruits for the kheer that we prepared as tabarruk. In another clip, my father is seen getting ready for the majlis, dressed in black as a sign of mourning, and offering salam to the alam-e-pak of Mula Ghazi Abbas. It was a very emotional and respectful moment, showing his deep love and devotion for Ahlul Bayt. The majlis began with the recitation of the sacred Hadith-e-Qissa, filling the atmosphere with noor and blessings. It reminded everyone of the honor and purity of the Ahlul Bayt and set a beautiful spiritual tone for the gathering. After the Hadith-e-Qissa, Andalib Zaidi recited soulful qasidas and marsiyas. Her recitation touched every heart, reminding us of the loyalty, sacrifice and pain of Karbala and preparing everyone for the Majlis-e-Azhar. शरबत पे फातिहा देना दुआएं मांगना हाथों में मालियां रख के ये कैसे होगा कि अबा और अता ना करे ये कैसे पहुंचा सफाई के लिए तो अब और घर ढूंढो खुदाई के लिए मुंतज़िर काबे का चीरते हैं कल्लाए अजदर को काबे का दो किया मरहब को है डरने तो बोली जुल्फ़िकार दो किया मरहब को है डरने पे आदत है तुझे सोने की मेरी गोदी तेरे काबिल तो नहीं है फिर भी
جگہ میری سکینہ سو جا. 4 برسوں میرا زحمت دی کبھی تو نے مجھ پہ اپنی خدمت کا مجھے آج تو موقع دے دے. ہوگا احسان تیرا میری سکینہ سو جا. ارے آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. قید خانے میں جو آ جائیں گے تیرے خواب خود اٹھا دوں گی تجھے شانہ ہرا کر تیرا. اچھا کچھ دیر ذرا میری سکینہ سو جا. آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. مجھ سے دیکھا نہیں جاتا یہ تیرا درد جگر یہ بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا مگر اب نہ آئیں گے چچا میری سکینہ سو جا. آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. صابروں کا یہ کرینہ تو نہیں ہے بی بی یہ ہے پردیس مدینہ تو نہیں ہے بی بی. کر کے بس شکر خدا میری سکینہ سو جا. آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. بہا بہا ساکت ہے نبض ہائے غضب سر گیا کس وقت سانس رک گئی کب کس وقت. طاہرہ کے لیے بلندر صلوات. آمد سید الساجدین کے لیے بلندر صلوات. After that, my respected mother, who is a Zakira-e-Ali Bait, addressed the gathering. She spoke about the heartbreaking tragedies of Karbala, especially the sufferings of Bibi Sakina. Her words were full of depth and emotion, reminding us not only of the pain of the Ali Bait, but also of the values of patience, humanity, and sacrifice that Karbala teaches us. Her majlis touched everyone deeply, and many could not hold back their tears. May Allah grant us the ability to always keep the remembrance of Karbala alive in our homes and hearts, and may the blessings of Ahl Bayt remain with us forever. محمد وآل محمد بلندر صلوات. شہید قدیر رب ہے جو خالق ہے جو مالک ہے جو سلطان ہے جو برہان ہے جو پتھر میں کیڑے کو رزق عطا کرنے والا وہ اس طرح کا پروردگار ہے. وہ ایسا خالق ہے وہ ایسا باکمال ہے کہ اس نے اپنے کمال سے محمد وآل محمد کو خلق فرما دیا اور ہمارے دل میں محمد وآل محمد کی محبت کو پیدا کروا دیا.
محمد والے محمد کی محبت ہمارے دل میں پیدا کرتی اتنا باکمال ہے. اور حضرات محترم آج ہم اس جگہ پہ ہم بی بی سکینہ بارگاہ میں آتے ہیں. کون بی بی سکینہ؟ بی بی سکینہ بنت الحسین علیہ السلام. کہتے ہیں کہ جب آپ ہر طرف سے مایوس ہو جائیں، جب کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، آپ مایوس ہو جائیں، آپ مولا کی بارگاہ میں جائیں، دعا قبول نہ ہو، ہماری گناہوں کے سبب، ہماری کوتاہیوں کے سبب، ہماری غلطیوں کے سبب جب ہماری دعا قبول، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب مولا مایوس ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مولا کو بیگاہ چھوٹی شہزادی ہماری میری چھوٹی شہزادی کے وسیلے سے مانگو. اور توسل کے بے شمار طریقے شہزادی سے توسل کرنے کے. کہتے ہیں کہ اگر شہزادی سے ہم سورہ مریم پڑھ کے ہدیہ کریں اور اس سے پھر شہزادی کے وسیلے سے مانگیں، شہزادی کو سورہ مریم ہدیہ کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم درود پاک کی طرف شہزادی کو ہدیہ کریں، پھر دعا مانگیں. یا پھر ہم دعائے توسل پڑھ کے شہزادی کو ہدیہ کریں، پھر دعا مانگیں. یا ہم حدیث کسا پڑھ کے شہزادی کو ہدیہ کریں، پھر دعا مانگیں. یا پھر ہم امن یجیب المسترہ پڑھ کے 5 دفعہ یا 21 دفعہ پڑھ کے پھر دعا مانگیں، شہزادی کو ہدیہ کریں اور شہزادی کو ہدیہ کر کے رو کے دعا مانگیں. کیونکہ دیکھیں جو باپ ہوتے ہیں نا انہیں بیٹی سے کہتے ہیں نا کہ بیٹی اللہ تعالیٰ کتنے بیٹے دیں لیکن ایک بیٹی ضرور ہونی چاہیے. کیونکہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ والدین کے ساتھ کہتے مرتے دم تک بیٹے نافرمانی کر جاتے سم ٹائم، لیکن بیٹی جو ہوتی ہے وہ سچی محبت کرتی ہے اپنی بیٹی. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بیٹی باپ سے تو بیٹی کو بہت ہی عقیدت ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کی بیٹی ہو تو خدا نہ خواستہ کوئی مر جائے دنیا سے چلا جائے تو کہتے ہیں کہ اس کے جنازے کو اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک کہ اس کی بیٹی جنازے میں آ جائے. تو میں کہتی ہوں کہ مولا کو بی بی سکینہ سے کتنی محبت ہوتی. وہ سکینہ کی جس کو مولا نے اپنی نماز شب، کہتے ہیں نا کہ اگر دعا قبول کروانی ہے تو آپ نماز شب میں پڑھیں جب ساری دنیا خواب غفلت میں ہوتی ہے، اس وقت آپ پروردگار عالم کے حضور دعا کریں، میرا مولا قبول کرتا ہے. تو جس کو نماز شب کی دعاؤں میں حسین نے مانگا ہوگا اس سے حسین کو کتنی محبت ہوتی. اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو شہزادی کا واسطہ دیں، شہزادی کا واسطہ دیں. اور میں کہتی ہوں کہ شہزادی خود بابا اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ کے بابا کو پکار کے کہے کہ بابا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ مصیبت میں ہے، ان کی یہ مشکل ہے، بابا آپ ان کی مشکل کشائی کیجیے گا. اگر بابا سے نہیں کہیں گے تو غازی عباس آپ پوری کروا دیں گے. تو پروردگار عالم فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کر دیا. آج ہم بی بی کی بارگاہ میں جمع ہے نا تو ہم نے اپنی اپنی دعاؤں کو اپنے دل میں رکھ کے شہزادی کی بارگاہ میں اس طرح سے بیٹھنا ہے کہ بی بی باب الحوائج ہے. اور جب بی بی بارگاہ میں موجود ہوتی ہے نا باب الحوائج کی بارگاہ میں اپنے دل میں ایمان کامل کے ساتھ یہ بات دل میں رکھ کے بیٹھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعا کبھی رد ہوئی. میرا تو یہ ایمان کامل ہے. تو میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں خلق کیا ہے اور ہم ہی تمہیں موت دیں گے اور ہم ہی تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے. یہ 55 نمبر آئے تھے نا سورہ طٰہٰ کی، یہ بہترین آئے تھے کہ خداوند عالم ارشاد فرما ہے کہ ہم نے تمہیں خلق کیا اور پھر ہم ہی تمہیں موت دیں گے اور پھر ہم ہی تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے. عزیزان محترم اگر ہم دیکھیں نا اپنی زندگی کو، اگر ہم اپنی نماز پہ غور کر لیں، اپنی زندگی کو اگر دیکھیں تو دیکھیں ہم نماز مولا سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ جو ہم نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں، پہلے ایک سجدہ کرتے ہیں پھر آپ اٹھتے ہیں، اٹھ کے کیا پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اور پھر دوبارہ سجدہ کرتے ہیں. تو مولا یہ ہم نے 2 سجدے کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ جو 2 سجدے کرتے ہیں پہلے ایک سجدہ کیا پھر اٹھ کے بیٹھے پھر دوسرا سجدہ کیا. تو پروردگار عالم فرما رہا ہے قرآن میں کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا اور احسن طریقے سے اس نے ہمیں خلق کیا. اور خدا نے ہمیں کن چیزوں سے پیدا کیا؟ مٹی، ہوا، آگ اور پانی، یہ 4 چیزیں ہیں نا. لیکن کبھی خدا نے جب بھی کہا یہ کہا کہ ہم نے انسان کو تراب سے پیدا کیا، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور انسان مٹی سے بنا ہے اور اسے مٹی نہیں جانا ہے. تو ہم نماز پڑھتے ہیں اس پہ سجدہ کرتے ہیں مٹی پہ اور پھر اٹھ کے استغفار پڑھی دوبارہ کس پہ سجدہ کیا مٹی پہ. اب جب پہلا سجدہ کیا یعنی پروردگار عالم نے ہمیں پیدا کیا اس کے حضور ہم سجدہ کرتے ہیں اور درمیان میں جو بیٹھتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہی تو آپ کی زندگی ہے. پوری زندگی ہم گزارتے ہیں، پوری زندگی جو ہم نے گزاری وہی ہے نا کہ جو ہم نے استغفار کیا اور اس کے بعد دوبارہ سجدہ کیا یعنی ہم مٹی
मित्रे जिंदगी गुजारी फिर दोबारा तो मट्टी इंसान की औकात क्या है? इंसान तुराब से बना है। और तुराब के मानी क्या है? हम तुराब से पूछते हैं और वो तुराब कौन है? कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जनाब सैयदा फातिमा को ज़हरा का किया ना मौला ने, और जब उठती हुई जनाब सैयदा और सुबह को मौला ने अब जनाब सैयदा की उठती हुई तो जनाब सैयदा और मौला उसकी गुजारे मुसल्ला इबादत पे इबादत की, इबादत करते रहे। जब तुम्हारा रसूल खुदा है तो मौला ने पूछा कि आईडी आपने फातिमा को कैसा पाया? तो जनाब उसकी गुशा ने इरशाद फरमाया कि बेशक मैंने फातिमा को अपनी इबादत में अपना हमसर अपना कफू पाया। अब जनाब सैयदा से पूछा गया या जनाब सैयदा आपने अली को कैसा पाया? तो बीबी ने फरमाया कि मौला उसकी गुशा ने मुसल्ला इबादत पे मेरे साथ इबादत की, उसके बाद मौला उठे जमीन पे बैठ गए और जमीन से इस तरह से बातें शुरू की कि जैसे कोई आमने सामने बात करता है। अब मैं नहीं जानती कि अली ने जमीन से क्या बातें की। अब मौला तो जानते थे रसूल खुदा, लेकिन आपने हमें बताने के लिए मौला से सवाल किया या अली आपने जमीन से क्या बात की? तो अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह आप तो जानते हैं ना कि आपने हमें अदल तुराब बनाया, हमें मट्टी का बाप बनाया। और जब तक हम मट्टी को जो मेरी जिम्मेदारी आपने लगा दी है, जो मेरी ड्यूटी लगा दी है, उनकी मजलिस उस बाबा मदीना था अब तुराब जो जमीन का जो मट्टी का बाप है, जिस मट्टी से हम बने हैं और जिस मट्टी पे सजदा करते हैं और वो मट्टी खातिर शफा हो, तो क्या हम कहाँ से कहाँ ना पहुंच जाएंगे? जिस खातिर से बाप सजदा करें, अगर हम समाज पढ़े तो थोड़ी समझ के पढ़ लें। हमने जब सजदा किया, एक हम सजदा किया, उसके बाद हम हालत जब कयाम किया, कयाम से हालत रुकू में आए, हालत रुकू से हम सजदे में चले गए। अब जो कयाम है ये हमारा जो गुजर चुका है, हमारा कयाम वो है। अब रुकू जो है ये हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, और वो जो हमने सजदा किया वो हमारी मौत, ठीक है। तो अगर हम ये समझ लें कि यही तो जिंदगी है जो हम गुजार रहे हैं, हमें अगला दिन नहीं मिलेगा, अगला दिन तो किसी के पास नहीं है ना, पास गुजर गया और प्रेजेंट तो किसी ने देखा ही नहीं है और ये फ्यूचर देखा नहीं है। तो प्रेजेंट जो है ना पास है ना फ्यूचर है, बस प्रेजेंट ही प्रेजेंट। जो करना है हमने वही करना है और हर मजलिस को हमको समझना है कि ये हमारी हो सकता है हमें अगली मजलिस नसीब हो ना, तो जब भी बैठे क्योंकि यही तो है जो हमें बख्शने वाले हैं, यही तो है जो हमें औलाद देने वाले हैं, यही तो है जो हमें रिस्क देने वाले हैं। उन्होंने बोला कायनात तो है, हमें अब्दुल कुरान तो है, जो जमीन से सुबह भी हिसाब रहता है, जो रात को भी हिसाब रहता है और भी हिसाब देती है। मट्टी बोला को हिसाब देती, इसीलिए कहते हैं हालत वाली बोला के जानने वाले जब वो बीमार हो गए बोला उनकी इयादत के लिए गए, बोला इयादत के लिए संभाले गए तो हारिस ने रोना शुरू किया। अब रुके क्यों? अब बोला आपकी इजाजत से मैं रूम हो जाऊँ, मुझे मौत से डर नहीं लगता। बोला मेरे छोटे छोटे बच्चे, बोला ने कहा बोला मेरे छोटे छोटे बच्चे, बोला ने कहा यहाँ वाली से बोला मैं इयादत से मैं रूम हो जाऊंगा। बोला ने फरमाया हारिस क्या तुम नहीं जानते कि हम अबू तुराब है और तुम तुराब से बने हो, और देखे ना कि जब हम मुंतकिल होते हैं ना मरते तो नहीं है ना। अब जितने मोमिन मैं जहाँ भी चलती हूँ मैं देखती हूँ तो हमारे जा चुके हैं दुनिया से, मुझे लगता है ये बैठे हुए मोमिन दुनिया से चला तो जाए तो मोमिन मरता तो नहीं है ना, मोमिन तो जिंदा रहता है ना, मोमिन तो मुंतकिल होता है ना। तो जब हम जमीन का इंतकाल करते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, तो कभी हो ही नहीं सकता कि मालिक मौजूद ना हो और हम जमीन की रजिस्ट्री करवा लें, इंतकाल करवा लें। तो मौला फरमाते हैं कि हारिस हर करने वाले के साथ आने मौजूद, कोई दुनिया से मेरी ना मोमिन, कोई मुनाफिक, कोई काफिर, कोई मुशरिक, कोई भी दुनिया से जाए हम उसके सराहने मौजूद होते हैं। और हारिस फिक्र न करो, तुम्हारी कब्र में अली मौजूद, यहाँ भी हम हैं वहाँ भी हम हैं। इसीलिए तो जब रसूल खुदा सिदरतुल मुंतहा पे पहुँच गए ना, तो जहाँ जिब्रील के पर चल रहे थे वहाँ ये परेशान हो क्यों नीचे बार बार देख रहे हो? कहा परवरदिगार आलम आप बेहतर जानते हैं। तो कहा पर्दे के पीछे भी वही है, नीचे भी वही है, वही ऐनुल्लाह है, वही यदुल्लाह है, वही लिसानुल्लाह है, वही इल्मुल्लाह है, वही जलबुल्लाह है। वो अली मुश्किल कुशाए दो जहां है, वो हाजत रवा है, वो यासरुद्दीन है, वो अमीरुल मोमिनीन है, वो अमीर कायनात है। और हो ही नहीं सकता कि एक मर्तबा सच्चे दिल से पुकारे तो मौला मदद को। नाराए हैदरी 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 और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत है कि अगर आप तड़प रही है ना तो मौला भी तड़प रहे हैं, मौला भी तड़पते हैं आपके लिए। और जब कभी जाए कभी जब ले जाए सिदरा बाबे सिदरा से जाए, बाबे सिदरा 10 दरवाजे ना मौला, बाबे सिदरा से जाए। क्यों बाबे सिदरा से जाए? इसलिए
वो दरवाजा सिदरतुल मुंतहा लिखा हुआ है ना, जो किला ज़ैनबिया के सामने वाला दरवाजा है, जो बाबे सिदरा है, ये वो दरवाजा है जहाँ हुसैन की माँ इस्तकबाल के लिए मौजूद होती है, जहाँ सैयदा मौजूद होती है। ये वो दरवाजा है जहाँ मेरा मौला थोड़े से ज़ीन से ज़मीन में आया, जहाँ 70 कदम में बहन देख रही थी, जहाँ बेटी देख रही थी, और जहाँ मेरे मौला पे 13 सड़कें चली, और 11 मुहर्रम को सज्जाद को केवल तोकर बेड़ियों का पहनाया गया, आंखों से पुष्ट बांध दिए गए। तो मैं कहती हूँ 4 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची हो ना, अब कहीं शहर चले जाए ना, कोई बड़ा सा ऊँट हो ना, आप बच्ची को बोले बच्ची तू ऊँट पे बैठेगी, बच्ची जाके कहेगी नहीं बाबा, नहीं मामा मैं तन्हा ऊँट पे नहीं बैठ सकती, मैं कैसे बैठूंगी, मैं गिर जाऊंगी। मैं कहती हूँ हुसैन की बेटी है ना 4 साल की, ऊँट पे, नंगे ऊँट पे, और मेरी शहजादी के हाथ बने हैं, मेरी शहजादी के पाँव ऊँट की पुश्त से बने हैं, मेरी शहजादी को जब पुकारा जाता था, जब मेरी शहजादी के मुर्दे को आग लगी, मेरी शहजादी भागती हुई आ रही थी, एक मलून सामने से आया, कहा तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम जीना बिन हुसैन है, मैं हुसैन की बेटी हूँ। मैं जालिम ने, मेरी बीबी ने सोचा जब आतिका के बाबा शहीद हुए थे ना, जब हज़रत मुस्लिम शहीद हुए थे ना, मेरे बाबा ने पास बुला के बेटियों के कानों में दूर पहनाए थे, बेटियों के सर पे प्यार किया था, जो यतीम होते हैं ना उनको प्यार किया जाता है ना। मेरी शहजादी के साथ मैं यतीम हूँ ना, मुझे प्यार करेगा। जालिम करीब आया, जालिम ने करीब आके मेरी शहजादी के दूर इस तरह से खींचे, दूर इस तरह से खींचे, कई फुट मेरी शहजादी जमीन से उछली फिर नीचे आई, खून से सकीना का कुर्ता भीग गया, आई कुर्ते में आ गए, और मेरे सामने रखकर मार तो चला, और जरा देखो तो सही, और कुर्ते में आ गए, और काज जख्मी है, और रुखसारों पे नील है। मसलदारों, आज से 210 साल पहले इब्राहिम दमिश्की बहुत बड़े आलम दीन थे, बहुत बड़े सैयद, बहुत बड़े आलम। कहते हैं कि उनको ख्वाब में आया या उनकी बेटियों को ख्वाब में आया, 3 दिन तक ख्वाब आता रहा कि हमें जिंदा से निकालो, हमारी कब्र में पानी आ गया जो के लिए तरसती रही। कहते हैं एक दिन एक बेटी को ख्वाब आया, कहा बाबा मैंने ये ख्वाब में देखा, कुछ शहजादी है जो आके कहती है मैं पानी से निकालो, हमारे कब्र में पानी आ गया। अब बाप ने गौर नहीं किया, फिर दूसरे दिन ख्वाब आया, फिर तीसरे दिन ख्वाब आया, फिर उनको खुद ख्वाब आया हाकिम वक्त के पास में। देखिए 132 हिजरी तक तो जालिमों की हुकूमत है, 132 हिजरी तक उन्होंने किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि बीबी की कब्र कहाँ। जब ख्वाब आया ना तो अब देखो, अब जाके इजाजत दी कि क्या मुझे इजाजत है कि मुझे इस कब्र का इशारा हुआ, कहा कि वो कब्र तो शायद अली की बेटी रुकैया की कब्र है, क्योंकि उसके ऊपर रुकैया लिखा है। अब उस सैयद ने इजाजत दी, अपनी बेटियों को साथ लेके गए, एक पर्दा लगाया, क्योंकि बीबी का हुक्म था कि मैं सैयदजादी हूँ, अल्लाह करे तुम शाम की ज़ियारत करो। जब से मैं शाम से आई हूँ ना, जब से मैं शाम की ज़ियारत करके आती हूँ ना, मुझे चैन नहीं आता, खुदा की कसम मुझे चैन नहीं आता। मैं कहती हूँ शाम के लोग मुंह का मातम क्यों करते हैं, लोग मुंह में दबाचे क्यों मारते हैं, लोग सीने का मातम क्यों नहीं करते। कहते हैं कि जब बीबी ने कहा जब कब्र था, मैं कहती थी शाम के लोग मुंह का मातम क्यों करते हैं, लोग मुंह में दबाचे क्यों मारते हैं, लोग सीने का मातम क्यों नहीं करते। कहते हैं जब बीबी ने कहा जब कब्र जब इजाजत मिली, उनकी बेटियों ने कब्र खोदी, उन्हें लाशा बेटियों ने निकाला, कब्र उन्होंने ठीक करने शुरू की। अब बच्चियां कहते थे बेटियों ने जब लाशा निकाला तो बेटी का चीख मार मार के रोती थी। अब एक मरतबा चीख मारी, फिर चीख मारी, फिर चीख मारी, कहा बेटा क्या हुआ, लाशा है, रोती हूँ। कहा बाबा ये बात नहीं है, बाबा हाथ बंधे हैं, बाबा कुर्ता बना हुआ है,
समझ के अपनी पाक तारीफ को मंजूर फरमाना। मेरे मौला किस से हमारे खैर किया गया है, इसमें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देना। मेरे मौला शाहरुख को जिंदगी देना, सेहत देना, कि वालदा को जिंदगी सेहत देना, इसकी बहन को शादर आबाद रखना। मेरे मौला निदा को जिंदगी सेहत देना। मेरे मौला मेरी बीबी की बात पूछी तो से कि तू कहती थी मेरी दिल को कहां रुबाब का बड़ा हिस्सा है तेरी उस बीबी रुबाब गुजरी को के सच्चे मौला बच्ची नहीं मेरे मौला जो भी औलाद जो भी औलाद है जो औलाद मदीना की ख्वाहिश बनती है औलाद जो भी इसमें भी दुआ के निकाह है मौला सबकी दुआओं को कबूलियत लगा दे। मेरे मौला जो भी बीमार है जिसने भी दुआ के लिए कहा और जो बीमार है कुल बीमारों को मेरे मौला उस मेरे बीमार इमाम के सबके जो कहता था तू सब डब्बे बना दे तो कहता था शाम उस बीमार के सदके मेरे मौला कुल बीमारों की सफाई काम ला करना। मेरे मौला बेघरों को घर देना, मेरे मौला बेघरों को घर देना, मेरे मौला मकरूजों का कर्ज अदा कर देना। मेरे मौला जो भी अपने बच्चों की वजह से परेशान है ना, जिनके बच्चे अभी किसी काबिल नहीं है, मेरे मौला सबके बच्चों को नेक सालेहा बनाना, सबके बच्चों को फरमाबरदार बनाना। जो रोजगार की वजह से परेशान है अल्लाह रोजगार दे, जो अपने बच्चों के वक्त की वजह से परेशान है मेरे मौला सबके बच्चों के वक्त अल्लाह दे। मेरी बीबी मेरे मेरा हुसैन के बच्चों के साथ कि मेरी बीबी को बच्चों के साथ के कुल बच्चियों के देख नसीब करना। मेरे मौला जो भी हज और ज़ियारत के ख्वाहिशमंद हैं हज और ज़ियारत करवाना। मेरे मौला हमें कूफा और शाम, हमें करबला, हमें नजफ, हमें सामरा, हमें बगदाद और कादमैन, मेरे मौला हमें जन्नतुल बकिया मदीना मक्का हमें देखना नसीब। मेरे मौला हमारे मरहूमीन को अपने द्वारे रहमत में चला दिया। मेरे मौला मेरे शोहर समेत सबके स्तरों पे सुहाग का साइका सलामत रखना। मेरे मौला मेरे बेटों समेत सब माँ के कबूतर ठंडे रहे, सबके बेटों को जिंदगी सेहत देना। मेरे मौला तमाम मेरे भाई समेत सब बहनों के बेटे वाले वाल सलामत रखना, सबके भाइयों को जिंदगी सेहत देना, सबके बच्चों के वक्त अल्लाह ताला करना। मेरे मौला किसी का मोहताज न कर। मेरे मौला हमारे हाथ फैले फकत तेरे आगे फैले। मेरे मौला हम किसी से मांगते हैं ना तो एक दफा किसी की हेल्प करता है, 2 दफा करता है, 3 दफा करता है, इसको तो मांगने की आदत है। मेरे मौला तू तो वो है ना, तू गफूर रहीम है, तू सखी है, तू करीम है, तू वालिद जुद सखा है ना। मेरे मौला सबकी झोलियां भर देना, बेहिसाब देना, बीबी सकीना का सदका देना, शहजादी अलअसगर का सदका देना। मेरे मौला कोई हम ना देना सिवाय गमे हुसैन, सबको गमे हुसैन देना, मोहब्बत अहले बैत देना। मेरे मौला हमें ऐसा बना दे जैसा आप चाहते। मेरे मौला हमें आपके हुजूर से विनती ना उठानी पड़े। हर शब जुमा को हमारे अमाल आप चेक करते हैं, मौला सबके अमाल ऐसे कर दे जैसे आप चाहते हैं। रब्बना After my mother's majlis, Andalib Zaidi recited Nohas and everyone joined in Matam. Matam is a way of expressing our grief and loyalty to Imam Hussein, and it brings sakun to the heart while keeping the remembrance of Karbala alive. At the end, we distributed tabarruk, tea with samosas, burgers, fries, kheer and milk for the children in the name of Hazrat Ali Askar. Stay tuned and keep watching Shah's Family. Thanks for watching.